بات ہے۔ پالمپور نام کا ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں رمیش نام کا ایک آدمی رہتا تھا۔ اس کی مالا نام کی لڑکی سے نئی شادی ہوئی تھی، پر وہ اس کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ ایسے ہی کچھ سال بیت جاتے ہیں اور مالا ایک بیٹے کو جنم دیتی ہے۔ مالا کو لگتا ہے کہ بچے کے آنے سے رمیش بدل جائے گا، پر ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ رمیش تو پھر بھی مالا کو خوب مارتا ہے اور اسے اپنے بچے سے بھی بالکل پیار نہیں ہوتا۔ مالا، اے مالا، کہاں مر گئی؟ چل باہر نکل۔ جی کیا ہوا؟ میں مونو کو سلا رہی تھی، اس کی طبیعت بہت خراب ہے نا۔ تجھے بس مونو کے بہانے آرام کرنا ہوتا ہے۔ چل اب جلدی سے الماری سے پیسے نکال کر لا۔ جی وہ تو مونو کی دوائی کے لیے ہے، گھر میں بس وہی پیسے بچے ہیں، آپ وہ پیسے مت لے کر جاؤ۔ مجھ سے زبان لڑائے گی تو؟ بولانا پیسے لے کر آ ابھی کے ابھی۔ میں آپ کو وہ پیسے نہیں دوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تیری اتنی ہمت؟ تجھے تو میں ابھی بتاتا ہوں، دیکھتا ہوں تو کیسے مجھے پیسے لینے سے روکے گی۔ رمیش اندر جا کر الماری کھولتا ہے اور پیسے نکالنے لگتا ہے۔ مالا اس کو روکنے لگتی ہے۔ رمیش کو مالا پر اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ کونے میں پڑے ایک ڈنڈے کو اٹھاتا ہے اور مالا کو پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ مجھے مت مارو، مجھے مت مارو، چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو۔ آج تو میں تیرا کام ہی ختم کر دوں گا۔ وہ مالا کو اتنا مارتا ہے کہ مالا بے ہوش ہو جاتی ہے۔ رمیش اسے گھر سے کھینچتا ہوا کھیت میں لے جانے لگتا ہے۔ ارے رمیش، تم یہ سب کیا کیے جا رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اگر تو یا کوئی بھی بیچ میں بولا تو اس کی بھی ڈنڈے سے مار مار کر ایسی حالت کر دوں گا۔ اب تو کچھ بولنا بھی گناہ ہو گیا ہے۔ ارے بھیا، آج کل کسی کے گھر کے معاملوں کے بیچ میں نہیں بولنا چاہیے، جو ہو رہا ہے ہونے دو بس۔ رمیش مالا کو کھیت میں پھینک آتا ہے اور گاؤں کا کوئی بھی ویکتی اسے کچھ نہیں کہتا۔ رمیش اپنے بچے مونو کو بھی اٹھا کر مالا کے پاس ہی پھینک آتا ہے۔ مالا کے شریر پر بہت چوٹ لگی ہوتی ہے، اس کے شریر سے خون بہ رہا ہوتا ہے اور اس کا بیمار بچہ اس کے بغل میں پڑا بری طرح رو رہا ہوتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہاں خون کی خوشبو سے بہت ساری چیل آ کر اکٹھا ہو جاتی ہے۔ دھیرے دھیرے وہ مالا کے شریر کو نوچ کر کھانے لگتی ہے اور وہ مر جاتی ہے۔ رمیش کو اپنی بیوی اور بچے کے مرنے کا کوئی دکھ نہیں ہوتا اور وہ کچھ سمے بعد دوسری شادی کر لیتا ہے۔ ایک دن جب کچھ لوگ کھیتوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ارے سنو جی، میں نے ٹنکو کو وہاں چھاؤں میں پیڑ کے نیچے لٹا دیا ہے، آپ ذرا اس کا دھیان رکھنا، میں بس یہ پالک کاٹ کر آتی ہوں۔ ٹھیک ہے لکشمی۔ لکشمی پالک کاٹنے میں لگ جاتی ہے اور رام لال پانی پینے کے لیے پاس میں ٹیوب ویل پر چلا جاتا ہے۔ ان کا بچہ ٹنکو اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور مٹی میں کھیلنے لگتا ہے، پر تبھی وہاں ایک چیل اڑ کر اس کے پاس آ جاتی ہے۔ ارے یہ چیل کہاں سے آ گئی؟ اجی سنتے ہو، جلدی سے ٹنکو کو اس کے پاس سے ہٹاؤ۔ رام لال جلدی سے اس چیل کے پاس اسے اڑانے جاتا ہے، پر وہ چیل اچانک ایک بڑی سی چیل چڑیل میں بدل جاتی ہے۔ لکشمی اور رام لال ایک چڑیل کی شکل کی اتنی بڑی چیل دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں۔ ہے بھگوان، یہ کیا ہے، چیل یا چڑیل؟ اجی آپ جلدی سے ٹنکو کو اٹھاؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں ابھی کچھ کرتا ہوں، تم تھوڑا شانت رہو بس۔ چی چی چی، اب میں اسے اٹھا کر لے جا رہی ہوں اپنے ساتھ۔ چی چی چی۔ ارے نہیں، ایسا مت کرو، میرے بچے کو مت لے کر جانا۔ لکشمی چلاتی اور رام لال دیکھتا رہ جاتا ہے اور ایک چیل ٹنکو کو اپنے پنجوں میں دبا کر اڑ جاتی ہے۔ لکشمی اور رام لال چیل چڑیل کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ ہائے میرا بچہ، چیل چڑیل میرا بچہ لے گئی، ارے کوئی تو بچاؤ میرے بچے کو۔ ارے کوئی بچاؤ رے ہمارے ٹنکو کو، پتا نہیں وہ چیل چڑیل کیا کرے گی ہمارے بچے کے ساتھ۔ گاؤں والے چیل چڑیل کو دیکھتے ہیں اور انہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہوتا۔ ارے بھیا، یہ کیا چیز ہے؟ اتنی بڑی چیل اور چڑیل کی شکل، ایسی چیز تو میں نے اپنی زندگی میں نہ کبھی دیکھی اور نہ ایسا کچھ سنا۔ صحیح بول رہے ہو بھیا۔ اور دیکھو، یہ رام لال کے بچے کو لے کر جانے کہاں جا رہی ہے؟ بھگوان ہی بچائے اس بچے کو۔ چیل چڑیل ٹنکو کو لے کر جانے کہاں اڑ جاتی ہے اور کوئی بھی کچھ نہیں کر پاتا۔ پورے گاؤں میں اس چیل چڑیل کی خبر پھیل جاتی ہے۔ سب لوگوں میں ایک ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ کہیں وہ دوبارہ نہ آ جائے، اور بس جس بات کا ڈر ہوتا ہے اگلے دن وہی ہو جاتا ہے۔ اگلی صبح جب ایک چھوٹا بچہ اپنے گھر کے آنگن میں چارپائی پر لیٹا ہوتا ہے،
तो वो चील चुड़ैल वहां दोबारा आ जाती है। ची 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 ची। चील चुड़ैल की आवाज सुनकर उस बच्चे की दादी बाहर आ जाती है। अरे, चील चुड़ैल आ गई, अब ये मेरे पोते को ले जाएगी, कोई बचाओ मेरे पोते को। उस बच्चे की दादी इतनी बूढ़ी होती है कि वो जब तक चारपाई तक अपने पोते को उठाने पहुंचती है, तब तक चील चुड़ैल उसके पोते को अपने पंजों में दबोच कर उड़ जाती है। चील चुड़ैल के कहर से गांव के लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। उनके मन में इतना डर बैठ जाता है कि वो अपने बच्चों को घर के बाहर निकालना ही बंद कर देते हैं। एक दिन रमेश अपनी दूसरी बीवी से उस चील चुड़ैल के बारे में बातें कर रहा होता है। अरे पुष्पा, क्या ये बात सच है कि गांव में कोई चील चुड़ैल बच्चों को उठा उठा कर ले जा रही है? जी बिल्कुल सच है, वो चुड़ैल जाने कितने बच्चों को गांव से उठा कर ले जा चुकी है। हमारा बच्चा भी अभी बस 4 महीने का है। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है कि मैं अपने बच्चे को उस चील चुड़ैल की नजरों से कैसे बचा कर रखूंगी। वैसे ही मैंने सुना है कि चील की नजर बहुत ही तेज होती है। अरे पुष्पा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ ना। मेरे होते हुए कोई चील या चुड़ैल हमारे बच्चे के आसपास भी नहीं आ सकती। रमेश अपनी बीवी पुष्पा और बच्चे के साथ छत पर धूप सेक रहा होता है कि अचानक एक चील उनके बच्चे के पास आकर बैठ जाती है। हे भगवान, ये चील कहाँ से आ गई? छू छू, जा जा यहाँ से चल। चील एक पल में बड़ी सी चुड़ैल का रूप ले लेती है और बच्चे को पंजों में दबोच लेती है। ये तो चील चुड़ैल है, छोड़ दो मेरे बच्चे को, जाने दो हमें। ची 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 ची, इस बच्चे का ही तो सबसे ज्यादा इंतजार था मुझे। अजी सुनते हो, चील चुड़ैल हमारे बच्चे को ले जा रही है। छोड़ दो मेरे बच्चे को, भगवान के लिए छोड़ दो। इस बच्चे का इतना दुख, तो कभी दूसरे पर तरस क्यों नहीं आया तुझे? चील चुड़ैल इतना कहकर बच्चे को लेकर उड़ जाती है। रमेश और पुष्पा रोते चिल्लाते रह जाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चे को कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगा। रमेश सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है। हमें उस चील चुड़ैल को पकड़ना ही होगा। आखिर कब तक हम अपने बच्चों को ऐसे घर में छुपा कर रखेंगे? पर हम कर भी तो क्या सकते हैं? हमें एक बहुत बड़ा जाल बिछाना होगा, जिससे कि हम उस चील चुड़ैल को पकड़ सकें। गांव वाले रमेश की बात से सहमत होते हैं और एक बहुत बड़ा जाल गांव के बीचों बीच बिछा देते हैं। उसके बाद वो अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए छोड़ देते हैं। शाम को जब चील चुड़ैल वहां आती है तो उसके पैर जाल में फंस जाते हैं। गांव वाले जल्दी से चुड़ैल को जाल में लपेट देते हैं। छोड़ दो मुझे, जाने दो। जी जी जी। ऐसे कैसे छोड़ दें तुम्हें? तुमने हमारे बच्चों के साथ क्या किया है, सच सच बताओ। जो तूने मेरे बच्चे के साथ किया, वो मैंने नहीं किया किसी बच्चे के साथ। आखिर मैंने क्या किया? याद कर तूने क्या किया था मेरे साथ और मेरे बच्चे के साथ। हमें मरता हुआ छोड़ दिया और चील मुझे नोच नोच कर खा गए। क्या तुम मेरी पहली पत्नी माला हो? हाँ, मैं माला हूँ, जो मरने के बाद एक चील चुड़ैल में बदल गई। उसके बाद मैं तुमसे और इन गांव वालों से बदला लेने आई हूँ, क्योंकि किसी ने भी मुझे या मेरे बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं की। मुझे माफ कर दो माला, मैं तुम्हारा कातिल हूँ। तुम मेरी जान ले लो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें और अपने बच्चे को मार डाला। मैं कितना बुरा हूँ। हाँ माला, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारी वजह से तुम और तुम्हारा बच्चा मर गया। मेरा बच्चा आज भी जिंदा है। क्या? सच में? मेरा मोनू जिंदा है? कहाँ है वो माला? मुझे उसके पास जाना है, उसे देखना है। चलो सब मेरे साथ। रमेश और कुछ गांव वाले चील चुड़ैल की पीठ पर बैठ जाते हैं और उसके बाद वो चील चुड़ैल उन्हें अपने साथ उड़ाकर दूर एक खूबसूरत सी जगह पर लेकर जाती है, जहाँ वो सारे बच्चे बड़ी हंसी खुशी खेल रहे होते हैं, जिनको उसने उठाया था। मैंने किसी को नहीं मारा था, मैं बस तुमको और सबको सबक सिखाना चाहती थी। वो देखो, हमारा बच्चा मोनू। रमेश रोता हुआ मोनू को गले लगा लेता है। बाकी सब गांव वाले भी अपने बच्चों को मिलकर बहुत रोते हैं। आपने जो गलती की है, अब उसे सुधारने का वक्त आ गया है। हम मोनू को अपने साथ रखेंगे और दोनों बच्चों को एक समान प्यार देंगे। चील चुड़ैल सबको सबक सिखा चुकी होती है और वो हमेशा के लिए वहां से चली जाती है।
वीरपुर गांव में मंगला नाम की एक औरत अपने पति मुरारी के साथ रहती थी। मंगला और उसका पति मुरारी दोनों एक समोसे का ठेला चलाते थे। मंगला बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट समोसे बनाती थी। गांव के सभी लोग मंगला के ठेले से ही समोसा लेकर खाते थे। मंगला 5 समोसे देना। मंगला दीदी 2 समोसे मुझे भी दे देना। कुछ भी कहो मंगला, ऐसे समोसे इस पूरे वीरपुर गांव में कोई नहीं बनाता। वाह 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 वाह। मंगला और मुरारी दोनों मिलकर अच्छा कमा लेते थे। 590 और ये 10 रुपए, पूरे 600। सुनो, बस ऐसे ही हम पर लक्ष्मी जी की कृपा होती रहे। हमारी कमाई बहुत ही अच्छी हो रही है। सब तुम्हारे हाथों के बने समोसों का ही तो कमाल है मंगला। सुनो, कल जल्दी उठ जाना, समोसे बनाने का सामान खत्म हो रहा है, जल्दी मंडी हो आएंगे, क्योंकि टाइम पर समोसे बनाकर ठेला भी तो लगाना है। ठीक है, तुम मुझे जल्दी उठा देना। अगले दिन मंगला और मुरारी दोनों समोसे का सामान लेने मंडी जाते हैं। भैया, सबसे बढ़िया वाले 20 किलो आलू कर दो। ये 30 रुपए किलो वाला आलू है, ये कर दूं? बढ़िया है ना? और मीठा नहीं होना चाहिए आलू, ना ही खराब। ये मटर तोल दो, प्याज और बाकी हरा धनिया, हरी मिर्च। मंगला और मुरारी इसी तरह सब्जी वाले से बढ़िया सब्जी खरीदते हैं। राशन की दुकान से समोसे बनाने के लिए बढ़िया मैदा और तलने का तेल खरीद लेते हैं। मंगला और मुरारी समोसे बनाने में बहुत ही बढ़िया सामान इस्तेमाल करते थे। शायद यही वजह थी कि उनके समोसे बहुत ही ताजे और स्वादिष्ट लगते थे। मंगला की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऐसे ही एक दिन, सुनो जी, सामान लेने मंडी नहीं चल रही क्या? अरे भूल गई, आज शहर से मेरा दोस्त रघु अपनी पत्नी के साथ आ रहा है। हाँ, मैं तो भूल ही गई। एक काम करो, सामान मैं खरीद लाती हूँ। कभी पीछे से आ जाए तो तुम तो घर पर होगे, और सामान लाना भी जरूरी है। कल ठेला कैसे लगेगा फिर? मुरारी घर पर ही रुक जाता है और मंगला सामान खरीदने चली जाती है। मंगला जब सामान खरीद कर वापस घर लौटती है तो रघु और उसकी पत्नी आए हुए थे। मंगला उन्हें खाना पीना करवा कर समोसे बनाने का सामान खोलकर रखने लगी। अरे आप लोग इतना महंगा सामान खरीद कर समोसे बनाते हो, इससे आपको क्या बचत होती होगी? 5 रुपए के समोसे में 10 रुपए की तो लागत ही लगा देते हो। ऐसे थोड़ी होता है। अरे कमाई करना सीखो। मैं शहर में रहकर बहुत कुछ सीख गया हूँ। मैं तेरी बात नहीं समझा रघु। भैया, मैं आपको समझाती हूँ। हम पति पत्नी शहर में अपना घर बनाकर बैठे हैं और आज ये हमने मिलावट करके ही कमाया है। बस ग्राहकों की जीभ पर स्वाद लगना चाहिए। अरे तू समझा नहीं, तू इतना महंगा मैदा, इतने महंगे आलू और सब्जियां, तेल सब कुछ खरीदता है भाई। पर मैं भी ऐसे ही समोसे और पकौड़े का ठेला लगाता था, पर कोई कमाई नहीं होती थी। फिर मैंने शहर जाकर देखा कि सस्ता सामान लगाकर भी उतनी ही कमाई होती है जितना कि महंगा लगाकर। हाँ, सबसे घटिया मैदा और सूजी खरीदो और शाम के समय मंडी जाओ जहाँ सब्जियां छट जाती हैं, वो सस्ते में खरीद लेता हूँ। अब कोई खराब थोड़ी होता है सामान, बस थोड़ा पुराना ही तो होता है। ग्राहक कौन सा देख कर आया है? कितनी दुकानों पर सामान खरीद कर खाते हैं, अपने ऊपर कोई बात थोड़ी आती है। मंगला रघु और उसकी पत्नी की सारी बातें सुन रही थी। पर ये तो गलत है ना रघु, हम ग्राहकों को बढ़िया खाना खिलाने की जगह घटिया चीज खिलाएंगे तो उनकी सेहत पर भी तो असर होगा। अरे कुछ नहीं पता चलता जी, कहीं लिखा थोड़ी है कि तेरे ठेले के समोसे खाकर ही ग्राहक बीमार हुआ है? अगर अपना पक्का घर बनवाना है तो थोड़ी बहुत तो धोखाधड़ी करनी ही पड़ेगी भाई, वरना ऐसे काम नहीं चलेगा मंगला भाभी। हाँ, ये ठीक कह रहे हैं मंगला भाभी। आगे बाल बच्चे होंगे तो खर्चा भी तो चाहिए। अभी से ये सब शुरू कर दो, वरना बाद में बहुत पछताओगे। कब तक रोजाना की कमा कर खाते रहोगे? कुछ तो जोड़ोगे ही ना। रघु और उसकी पत्नी की बात मंगला के दिमाग में घर कर गई। मंगला को कम लागत में ज्यादा पैसे कमाने का लालच आ गया। कुछ दिन बाद मंगला और मुरारी जब समोसे बनाने का सामान लेने मंडी गए। क्या हुआ मंगला दीदी, आज सब्जियां नहीं खरीदनी? अभी नहीं भैया, थोड़ी देर में आती हूँ। सुनो, यहाँ आगे वाली गली में जो दुकान है वो सस्ती सब्जी देता है, उसके पास चलते हैं। मंगला ये कैसी बातें कर रही हो? तुम रघु और उसकी पत्नी की बात मानकर सचमुच घटिया सामान खरीदने वाली हो? हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? कब तक ऐसे टूटे फूटे पुराने घर में रहते रहेंगे? हमें भी तो शौक है नए और पक्के घर में रहने का, ढेरों पैसे कमाने का। अच्छा हुआ रघु भैया की बात मुझे समझ में आ गई, वरना मैं तो रोजाना ही लुटने वाला काम कर रही थी। मंगला मुझे लगता है ये हम ठीक नहीं कर रहे, कहीं ऐसा ना हो इस लालच का नतीजा बुरा निकले। अभी तुम चुप रहो, मुझे सामान खरीदने दो। गया भैया, वो सस्ता वाला मैदा कौन सा है वो दिखाना जरा, सबसे सस्ता वाला दिखाना। हाँ, तेल कौन सा है खुला जो सस्ता मिल जाए? मैं समझ गया तुम कौन से तेल और मैदे की बात कर रही हो। अभी रुको, मैं अंदर से लेकर आया है।
दुकानदार अंदर गोदाम में से कुछ मैदे और आटे के कट्टे साथ में तेल की बोतलें लेकर आता है। भैया, इस मैदे में तो घुन लग गई है। अब सस्ती चीज लोगे तो थोड़ी बहुत खराब तो मिलेगी ही भैया। अरे कहाँ घुन लगी हुई है, अभी घर जाकर इससे अच्छे से छान लूंगी, सारे कीड़े खत्म हो जाएंगे। मंगला के मन में तो लालच आ चुका था, अब उसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने थे, इसलिए उसने मुरारी की बात को हल्के में ले लिया। मंगला उस पुराने सामान से समोसे तैयार करती है और शाम के समय ठेला लगाने बाजार में पहुंचती है। लोग तो मंगला के समोसे खाने के लिए पहले से ही भीड़ लगाकर रहते थे। कुछ ही देर में मंगला के सारे समोसे बिक जाते हैं। मंगला बहुत खुश थी क्योंकि आज कम लागत में उसकी कमाई ज्यादा हुई थी। आज तो कल से भी दुगने पैसे बच गए। देखा, रघु भैया शहर में रहते हैं, उन्हें सारी जानकारी है। हम दोनों तो इतना महंगा सामान इस्तेमाल करके लुट रहे थे। अब देखना, मैं रोजाना ही दुगने पैसे कमाऊंगी, कल इससे भी सस्ता सामान खरीद कर लाऊंगी। मंगला सस्ता और घटिया सामान खरीद कर समोसे बनाने लगी। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग बीमार पड़ने लगे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं। तभी एक दिन पुलिस उस दुकानदार को पकड़ लेती है जो गांव में खाने पीने की दुकान और ठेले वालों को खराब सामान बेचा करता था। हाँ भाई, कौन कौन से खाने पीने की चीज बनाने वाले दुकानदार हैं और ठेले वाले भी, जिन्हें तो ये पुराना सामान बेचता है, जिस कारण गांव के लोग बीमार पड़ने लगे हैं भाई। अब मैं सबके नाम बताता हूँ मालिक। दुकानदार घबराकर सबके नाम बता देता है और उन नामों में मंगला और मुरारी का नाम भी शामिल था। मंगला और मुरारी को पुलिस पकड़ लेती है। मंगला आज सचमुच बहुत पछता रही थी क्योंकि उसने किसी के कहने पर अपना बसा बसाया काम खराब कर लिया, और वो भी थोड़े से पैसे कमाने के लालच में। लिसा अपने हस्बैंड के साथ एनिवर्सरी पार्टी एंजॉय करने के लिए क्लब जाती हैं और दोनों वहां पे बातें कर रहे थे। अचानक लाइट चली जाती है। एक गर्ल लिसा के हस्बैंड को किस कर देती है। लाइट आने के बाद लिसा देखती है उसके हस्बैंड के चिक्स पर लिपस्टिक के निशान है, जिसे देख के वो बहुत गुस्सा करने लग जाती है। लिसा को गुस्सा करते हुए देख के उसका हस्बैंड परेशान हो जाता है। दोस्तों, क्या आप क्लब में मौजूद लड़कियों को देख के बता सकते हो इन तीनों में से लिसा के हस्बैंड को किसने किया होगा? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। इन तीनों में से लिसा के हस्बैंड को किस ऑप्शन 2 ने किया है? लिसा के हस्बैंड के चिक्स पर जो रेड लिपस्टिक का निशान है वो ऑप्शन 2 वाले लड़की के लिपस्टिक से मैच होता है। दोस्तों, क्या आपने भी ऑप्शन 2 सिलेक्ट किया था?